to score you the highest in the school and in the board also. Then you can score highest. And again, I'm telling you, bacha, we don't know still what will be the situation. So I want you to be very careful and very attentive while you are giving any exams at school. I'm telling to each and every student because this year also we don't know. The situation in India is something different. Unless now people have started cursing that IPL. People have started cursing it. अरे इंडिया में इतना सारा कोरोना है फिर भी ये लोग आईपीएल खेल रहे थे. माय क्वेश्चन इज, मैं मानता हूं वो लोग आईपीएल देख खेल रहे थे, आप लोग देखते क्यों थे? सी, इफ यू सी आईपीएल देन देयर विल बी एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन होगा उनके प्रोडक्ट का, उसमें से उनको पैसा मिलेगा. People will be getting money and that will be paid to all teams, right? If you don't see the match, कोई एडवर्टाइजमेंट क्यों करेगा? For example, honestly saying, any mythological serial you see, you don't see that. Okay, in childhood, you might have seen that Doraemon and all that Cartoon Network. But that is you can say it's a niche market. Up to some age, we see that, but then we leave it. So कल मेरे दोस्त ने मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उसको बहुत बुरा लगा मैंने जब उसको रिप्लाई किया. अरे कोरोना को इतना कोरोना था तो भी इंडिया की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है को ये कर रहे हैं, आईपीएल कर रहे थे. मैंने उसको उतना ही लिखा, तू देखता क्यों था? कोई गलत करता है तो आप खड़े रह के देखते हो. तो फॉर एग्जाम्पल somebody इज मर्डरिंग somebody, you feel that that is bad. Now killing somebody, honestly saying, killing somebody is bad or good? It is bad. Then what soldiers do, it's bad? No, but that is their job, right? Now the Virat Kohli and Dhoni and all other they that is their job to play cricket for nations or for this. That is their job and that they are doing. So considering what is bad or what is good is a very relative terms. मारना, किसी को मारना अगर बुरा है तो सोल्जर भी बुरा ही कर रहा है, वो भी मार ही रहा है ना. आफ्टर ऑल द रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या है? सामने वाला मर रहा है, एक इंसान मर रहा है, किसी की जान जा रही है. सो इट इज बैड और गुड, वहां गुड हो जाता है और वहां यहाँ बाकी. एंड इफ यू आर फीलिंग इट बैड, देन अगर कोई आदमी किसी को मार रहा है और आपको लग रहा है बैड है तो आप क्यों क्यों उसको वहां खड़े रह के देखते हो? आइदर यू लीव द प्लेस, डोंट सी दैट और स्टॉप दैट. सेम वे मैं उसको वही पूछा कि देन तू दिखता क्यों है भाई? अगर वो लोग बुरा कर रहे हैं आईपीएल करके तो दिखता क्यों है? तो ही फेल्ट वेरी बैड और वो गुस्से वाला इमोजी आता है ना, वो मुझे भेजा. मेला आई एम सक्सेसफुल इन हर्टिंग योर फीलिंग सो आई एम वेरी हैप्पी. दैट्स व्हाट आई फील बैड बच्चा, कि डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, दे आर आल्सो डूइंग समथिंग व्हाट दे फील इट गुड. इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट गुड, डोंट सी इट. ओके, सेम थिंग. मैंने एग्जांपल क्यों दिया कि बच्चा, आई डोंट वांट टू टीच यू 3+3 = 6 बिकॉज यू नो इट. अगर मैं वही चीज आपको जो जो चीज आपको यू नो इट वेरी वेल, यू नो इट बाय हार्ट, वही चीज मैं बार बार आपको सिखाते रहता हूँ तो यू विल गेट बोर्ड. And your time, your energy, my energy, everything go with. So let us use our time so creatively. Wherever you are having problem, that I should understand it. And if you don't understand it, आज शाम तक तेरा install.school में हो जाएगा, 10th IGCSE accounts में हो जाएगा तेरा, and you will be able to add that. Okay, they will send you the password and everything for that thing. Okay. Now coming back to our subject. Okay. Now we all are human being. Or you can see the sharing is there, na? Yes, sir. Okay. So we all are human being and we जो काम करेगा ना वही गलती करेगा, जो काम करता ही नहीं ना उसकी कभी गलती होती ही नहीं. So अगर अकाउंटेंट
or bookkeeper, whatever he is. Bookkeeper are the people who pass journal entries and then the journal entries are transferred. But nowadays, every day, everything is computerized. But still, computer will pass the entries when you give the order. And if you give the wrong order, then computer doesn't know. कंप्यूटर ने आपको पास करना था सर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने डैडी अकाउंट डेबिट टू सेल्स मारा, तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि तूने सर को माल बेचा है. कंप्यूटर डजंट नो, तो कंप्यूटर डैडी के लेजर में ही पास करेगा. तो और या तुमने हाफ एंट्री पास की, तो व्हाट विल हैपन? नाउ वी विल टॉक अबाउट द records which are being maintained if they are incomplete. So in this chapter you are going to learn about, explain the disadvantages of not maintaining a full set of accounting records. Accounting records means from journal entries, that is from the prime book to final accounts. If you are not having the full set, ओके यू आप अगर बोलोगे हाँ सर मेरे पास मेरी टीम तैयार है, मगर मेरे पास क्या है सर, बॉलर नहीं है, सिर्फ बैट्समैन है, 11 के 11 बैट्समैन है, इट डजंट गिव यू द फुल टीम. सर मैं पूरा तैयार हूं, मेरे पास ब्लेजर है, नेकटाई है, cravache है, हैट है, गोगल्स है, देन हैंड ग्लोव्स है, एवरीथिंग है, बट नीचे शॉर्ट्स है सर, उसके नीचे ये, और उसके नीचे मैं स्लीपर पहनता हूं. It doesn't give you a full set. So whenever you want to have any good picture, a clear picture, you should have a full record or full set of records. You cannot have a half. And if you have a half maintenance of the full set of the accounting records, then it can be a disadvantage, not only to the business, but to the stakeholders also. Prepares opening and closing statement of affairs. What are the opening statement that you are supposed to prepare at the start of the financial year, not calendar year, financial year, and at the end of the financial year, which are the statement that you are supposed to prepare? Calculate profit for the year from changes in capital over time. Now, as you changes in capital, तो आपने already बनाया है statement of changes in capital, so you know that, and that capital will have a big impact on the profit, because if business wants to expand or grow, there is a possibility. For the expansion and growth you require capital. Without capital you cannot expand and grow. So if there is a change in capital, more capital is being introduced by the owner, or more drawings are being taken out by the owner, so there will be less capital will be available with you to use in the business. So how this capital changes will affect my profit for the year? Calculate sales, purchase, gross profit, trade receivable and trade payables and other figures from incomplete information. Prepare income statement and statement of financial position from incomplete records. Make adjustment to financial statement. ये adjustment कहाँ होता है पता है? Trade when you are given trial balance, and below trial balance you are given some adjustment information, additional information. Apply the techniques of markup margin and inventory turnover to arrive at missing figure. What is markup margin? You know पता है? Okay, I'll tell you. You started a business. Now it is already May month है ना, आपको लगता है कि बंबई में जून या जुलाई से बारिश चालू हो जाएगी. So you should be starting your production now. Then you will be able to supply in June, right? अगर आप जून में प्रोडक्शन चालू करोगे, अम्ब्रेला का प्रोडक्शन जून में चालू करोगे, तो तब तक तो बहुत सारे लोगों ने अम्ब्रेला बना के बेच भी दी होगी. एंड स्टार्टिंग में when the demand start, at the time प्राइस ज्यादा होती है. यही अम्ब्रेला जो आपको जून के स्टार्टिंग में यू आर गोइंग टू अवेल एट 500 रुपीज, वही अम्ब्रेला जुलाई एंड में 100 रुपीज में मिलती है. तो सेम थिंग. And at that time, for example, you decided to start the production today.
मई महीने में आई एम गोना टू कंप्लीट बिकॉज इट इज द 5th May and within 25 days I will be able to produce 5,000 umbrella. But when you decide to have a production, you decide कि अब बिजनेस क्यों करोगे? Why? To give services to people, to satisfy their needs and wants. Yes, and make a profit or something. एग्जैक्टली दैट इज द कोर इंटेंशन है. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा बच्चा. अगर प्रॉफिट नहीं है जिसमें, तो वो दैट इज द सोशल वेलफेयर हो गया. वो तो सब सोशल ये क्लब्स करते ही है सब. That those people are doing. But if you are producing any goods and services to satisfy the needs and wants of the people, then you are doing with an intention to make a profit. अभी मार्कअप मार्जिन है. तो आप क्या करते हो बच्चा? यू डिसाइड के जो भी मैं माल बनाऊंगा ना, तो आपकी जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर आपको 25% प्रॉफिट चाहिए मिनिमम. जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट, जो गोल्ड ऑर्नामेंट बनाते हैं ना, वो लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको 25% या 50% मार्जिन चाहिए. दैट मार्जिन इज मार्कअप, मार्जिन इज प्रॉफिट. तो इतना प्रॉफिट तो मुझे चाहिए. आपको पता है होटल बिजनेस में कितना प्रॉफिट है? ये जो स्विगी और ये जो वो स्विगी और दूसरा कौन है, वो जोमेटो, जो आपके घर तक लेके आता है ना, कभी सोचा कि उन लोग को कैसे परवड़ता होगा? They take a अगर commission from the hotel they bring the food from. ओके तो ओके राइट, एग्जैक्टली राइट यू आर. अगर स्विगी वाला विल टेक कमीशन फ्रॉम होटल्स एंड 20 रुपीज डिलीवरी चार्ज इट, दे चार्ज इट, राइट. अगर आप जोमेटो के लाइन में या स्विगी के ऑनलाइन में जाके बुक करोगे, तो अगर वो होटल वाले से भी 10% 20% लेते होंगे, तो होटल वाले का मार्कअप कितना होगा? अगर आप आज एक बिरयानी मंगवाते हो, मान लो, फर्ज करो यू आर ऑर्डरिंग अ बिरयानी फ्रॉम एनीवेयर एल्स नियर टू योर हाउस, जनरली उनका मार्कअप कितना होता है पता है? 50% or something. 200%. अच्छा एक चीज बताओ, आपने वो पेप्सी और कोक की जो बोतल आती है मीडियम साइज, कभी खरीदी है? हैव यू एवर बॉट इट? हाँ, कितने की आती है वो? 40 rupees around. एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली 40 रुपीज की जो बॉटल आती है, वो बॉटल जो अभी जो कोक का जो नासिक में प्लांट है, वहां एक प्लांट है, तो वो बॉटल कितने में बनती है पता है आपको? उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है पता है? 10 rupees or something. Around 10. तो आप बोल रहे हो 10 रुपीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और आपके हाथ में जब आती है तब वो 40 रुपीज हो जाती है, Yes, but राइट? marketing costs है वो सब भी हाँ, होता मार्केटिंग, वो तो एडेड वैल्यू जो होता है, so that we call it added value in business. But थोड़ा कम करो, 10 नहीं है. है. 7, थोड़ा सा और कम. 5, गो मोर. 4, थोड़ा सा और जाओ. 2, चलो थोड़ा सा और जाओ. 1. इट इज 98 पैसे. Aren't you surprised? Sir, but The then bot they say that they have a lot of sugar, so sugar might be. No, whatever it may, whatever it may. I am concerned. We see as an accountant, we are concerned with the cost and markup. तो कैसे परवड़ता होगा उनको 98 पैसे में? बिकॉज दे आर बाइंग इन बल्क. दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो आपने बिजनेस में पढ़ा होगा 9th में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो 98 पैसे में बनती जो बॉटल है, मगर जो हाथ के हाथ में जब आती है ना, तब वो 40 रुपीज हो जाती है. तब चलो 98 पैसे मत रखो, 1 रुपया रख देते हैं. उसके बाद वहां से दे एड अप देयर मार्कअप, because they have to add up the transportation cost, advertisement cost and other expenses that they are incurring. जो आपने किया था ऑफिस एक्सपेंसेस, जो आप लोगों ने किया था, वो ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, देन दे विल गिव इट टू द होलसेलर.
होलसेलर अपना एडेड और मार्कअप ऐड करके वो बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा आहत को 40 रुपीज में, उसके अंदर सबका एडेड वैल्यू है, which includes your markup margin also. And there is another thing that you are going to understand, inventory turnover to arrive at the missing figure. So inventory आपकी turnover कितनी होती है? For example, if you are going to any supermarket and you are buying toothpaste, आप कोलगेट खरीदते हो, आप पामोलिव को जो भी टूथपेस्ट आप परचेस करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट एनीथिंग यू बाय, वो लोग एक मशीन के आगे से स्वाइप करते हैं तो पिंक आवाज आती है, उससे क्या होता है, इट विल डिस्प्ले द प्राइस एंड हाउ मेनी क्वांटिटी यू आर बाइंग, तो वो आपके बिल में प्रिंट होके आता है. बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग एट द बैक. उनका जो स्टॉक होता है ना, उसमें से एक कोलगेट का जो होता है, जो प्रोडक्ट का जो नंबर आएगा वो प्रोडक्ट माइनस हो जाता है, तो दे कम टू नो कि हमारे पास इन्वेंटरी इतनी रही, अभी स्टॉक इतना बचा है. सो एट द एंड दे विल कम, एट द एंड दे विल सी किसकी इन्वेंटरी कम हो गई है, किसका रीऑर्डर करने का टाइम हो गया. इन्वेंटरी रीऑर्डर करना पड़ता है ना, दे आर आल्सो बाइंग फ्रॉम समवेयर, सो दे आल्सो हैव टू ऑर्डर फॉर इट, सो दे विल कम टू नो दैट. बट ये तो सेलिंग का हो गया. जो प्रोडक्शन करते हैं ना, दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो इन्वेंटरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड इज फिनिश प्रोडक्ट. उसकी इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मीन स्टॉक. आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है, आपके पास फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है, एंड इंपॉर्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल अभी तक बना नहीं, मशीन के अंदर ही है, प्रोडक्शन चालू है, एंड हाउ मच टाइम दैट इन्वेंटरी टेक्स अ टर्नओवर. मैं साल में कितनी इन्वेंटरी ऑर्डर करता हूं, मुझे कितनी करनी चाहिए, that will be calculated, that is called inventory turnover ratio, that we are going to understand. And this, the lesson, all as the name suggests, as you can see on the, it is incomplete record. And how incomplete record में से ये सब चीजें निकाल कर we will try to finish up the final statement. 17.1 incomplete records. Sometimes business, small business in particular, do not maintain a full set of accounting records. This means that the trial balance cannot be drawn and the financial statement cannot be prepared until a certain amount of preparatory calculation have been carried out. Much depends on the records and information available as to whether a full set of financial statement can be prepared. As you have seen, for example, you have seen that you have prepared trial balance also, trading account also, income statement also, and the balance sheet also. You have prepared it, so you know it. For changes in capital statement, if you want to, statement of changes in capital, if you want to prepare, you require capital, retained profit, debentures information, every information you require. If you don't have that, will you be able to prepare that statement? No. Will you be able to prepare the balance sheet? No. So, incomplete records are very hazardous. But in small business, जो केला वाला जो नीचे बेचता है ना, वो टोकरी में केला लेके, वो नहीं बनाएगा चलेगा. स्मॉल बिजनेस जो है वो नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो लोग बनाते भी नहीं है. और जो थोड़े बहुत छोटे बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपके घर के नीचे हेयर कटिंग सलून होगा या जनरल स्टोर होगा, दे माइट बी प्रिपेयरिंग, बट दे माइट नॉट बी प्रिपेयरिंग ऑल स्टेटमेंट, दे माइट नॉट बी प्रिपेयरिंग. सो इफ द इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन, डाटा एंड स्टेटिस्टिक्स आर देयर, उसके ऊपर बहुत सारे मेरे रिकॉर्ड डिपेंडेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सी इफ यू विल ट्राई टू कीप इट. And now, as we are from the starting of 9th grade, we have understand that our accounting system is double entry bookkeeping. Double entry, debit भी होना चाहिए, credit भी नहीं होना चाहिए. What is the advantage of that? Maintaining a full set of double entry record is important and provides many benefits. Following are the benefits. ये क्वेश्चन
2017 और 2015 में पूछा गया था बोर्ड में, what are the advantages which has been arrived by maintaining double entry bookkeeping records? First advantage, full detail is available about the asset, liabilities, revenue, and expenses of business. So during the, what is the expenses and revenue? That is the income statement. And asset is liability, is your balance sheet. That means if full details are available, then position and performance of the business can be ascertained. अगर आपको लिखना है तो एसेट लायबिलिटी के ऊपर लिख लो बैलेंस शीट बीएस, और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दैट इज इनकम आईएस, इनकम स्टेटमेंट। पेंसिल से लिख लो बच्चा। एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर लिखना बीएस, एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर लिखना आईएस, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। और नीचे लिखो एसेट एंड लायबिलिटीज के नीचे लिखो पोजीशन, एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के नीचे लिखो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि Ahad, I have a very big hope on you that instead of writing this simple, most of the student यही लिखेंगे from if the details are available in the business, then the आप asset और liabilities की जगह लिखो position of the business and performance of the business can be made available. Okay. The preparation of financial statement is relatively straightforward. If you keep the double entry bookkeeping, financial statement can be prepared. The calculation of the profit or loss of the year is likely to be reliable and accurate. जैसे हम लोगों ने बोला था what are the characteristics of account, उसमें ये दो चीज होती है that the account, whatever the information or the records or data which are being given, for example आज if you take Tata, Birla, Reliance and all those companies, they are public limited company, they have to publish their accounts in the newspaper. Do you know that? They have to publish their accounts in the local newspaper and in national newspaper also, so that the stakeholders can get the information. मगर वो accounting information सच्ची होगी, has to be clear, has to be real and reliable and accurate. So if you are having double entry, then it can be accurate. Single entry करोगे, आप खाली सेल्स की एंट्री करोगे और सर का अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं रखोगे, तो आपको कैसे याद रहेगा? फॉर ऑनेस्टली सेइंग, इफ आई आस्क यू टुडे इज ट्यूसडे, राइट? लास्ट ट्यूसडे को रात को क्या खाना खाया था बच्चा? लास्ट ट्यूसडे को आपने कौन से कपड़े पहने थे? नहीं याद होता बच्चा, अपने बारे में नहीं याद होता। तो एक साल के रिकॉर्ड्स टू रिमेंबर इट एक्यूरेटली, कि सर के पास, सर को मैंने कितनी बार माल बेचा था, 26 बार बेचा था या 25 बार बेचा था, वो याद नहीं आ रहा है। अगर याद नहीं आ रहा है, इट विल बी लॉस टू यू। मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तेरे को 25 बार ही याद आ रहा है, एक्चुअली तूने 26 बार बेचा था मुझे माल, तो इट विल बी। सो यू हैव टू मेंटेन, बट इफ यू मेंटेन, सो देन यू हैव टू, आप सेल्स में दिखाओगे तो नहीं चलेगा, यू हैव टू डेबिट मी हो, सेल्स को क्रेडिट करते हो तो आप मुझे डेबिट भी करते हो, you are debiting me also. That is a double entry. Then only your data and information can be reliable and accurate. More informed decision making is possible. If you are informed more, then you will like to take the decision very fast. For example, if you go to a doctor, I'm sick, I'm ill, डॉक्टर विल आस्क यू क्या हुआ, क्या हो रहा है, अच्छा क्या होता है, चलिए डिटेल में बताओ। अगर कुछ झगड़ा भी हो गया दोस्त के साथ, और जो छोटे बच्चे झगड़े करते हैं तो पेरेंट के पास रोते रोते जाते हैं, तो पेरेंट क्या पूछते हैं, डिटेल में बताओ क्या हुआ। देन ओनली डिसीजन मेकिंग, दोष तेरा था या दोष उसका था, वो पता चलेगा। डॉक्टर भी वो जानना चाहता है। तो ओनली द बिजनेस एंड द स्टेक होल्डर्स, द ओनर्स, द डायरेक्टर्स, द मैनेजर्स, or the creditors, lenders, government, they have to take some decision, and the decision making is possible only if you have the total information or more information. Half information is always dangerous, you cannot take the decision. A greater degree of control over business activities can be exercised. You can control the business. So in the half of the year you come to know that you are going on a loss making, then you can
control your expenses, and you can convert that loss into the profit. So the control is possible if you know that you are going in loss. And how you will come to know that you are going in loss? Only from the records, financial statement of double entry bookkeeping. The possibility of fraud is reduced. ये तो लास्ट कंट्रोल अकाउंट में भी हम लोगों ने बात की थी. Comparison with the result of previous year and with the other business are possible. As I was telling you, 89%, 89 is a good mark in accounts or a bad mark in account. You will say, sir, it's good mark. आप बोलो शायद. तो मैं बोलूं कि आज आपके लास्ट टू लास्ट एग्जाम में 96 आया था, उसके पहले 98 आए थे, और ये बार 89 आया. तो अच्छा मार्क है या बुरा है? So when you compare with your past performance, then you will come to know whether the business is growing, whether there is a growth and expansion है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है. जो आप कंपेयर करोगे, और कंपेयर कब कर पाओगे? when you have the figures of sales, purchase, gross profit, net profit, ये और capital, all this information is available, then you are able to compare. And for example, कभी कभी होता है ना, मम्मी डैडी बोलते हैं, अरे ये क्या मैथ्स में खाली 79 मार्क्स आउट ऑफ 100. तब 99% बच्चों का होता है, मम्मा मेरे सेकंड हाईएस्ट है, बाकी के बच्चों के स्कूल तो देख, बाकी बच्चों के मार्क्स देखेगी तो तू पागल हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को तो कोई, सब किसी के 40 है, किसी को 78 है, किसी को 70 है, किसी को 65 है, किसी को 50 है. मैं सेकंड हाईएस्ट हूँ मम्मा 79 में भी. सो वेदर बिकॉज बिजनेस की सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल जस्ट नाउ कोरोना इज गोइंग ऑन, तो कोरोना की वजह से क्या होता है बच्चा, बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, सो मेनी बिजनेसेस आर नॉट डूइंग वेल. सो दे ट्राई टू कंपेयर देयर फिगर, देयर परफॉर्मेंस फिगर विथ अदर बिजनेस ऑल्सो, कि अच्छा मैं रिलायंस भी बना रहा है, ओ ये वोडाफोन भी कर रहा है, एयरटेल भी बना रहा है 5G. तो दे ट्राई टू कंपेयर विथ ईच अदर, के अगर ये कोरोना के पीरियड में लास्ट ईयर में we made this much loss or we made this much profit, how much our competitors, other businesses make money. but ये कंपेयर कब करोगे? आपका रिजल्ट आपके पास होगा तब ना, उसके रिजल्ट से आपको कंपेयर करना है, उसके आपके मार्क आपके पास होंगे तब आप किसी के मार्क, तुझे कितना मिला, सबसे पहला ये होता है. समझो, whenever you get, आप अपना बचपन भी याद कर लो बच्चा, आपका बचपन याद करो. आप जब थर्ड ग्रेड में थे, फोर्थ ग्रेड में थे, जब भी रिजल्ट निकलता था, टीचर बोलती थी, आहाद यू गॉट 82 मार्क्स. आपके चेहरे पे खुशी बाद में आती थी या दुख बाद में आता था जब बाजू वाले को पूछते थे तेरे को कितना मिला? सी दैट गिव्स यू हैप्पीनेस और सैडनेस, राइट? बिकॉज यू कंपेयर दैट एंड ही सेड 52 आया, अरे आहाद तेरे को 82 आया, तो ही विल बी सैड. वो एक 3 इडियट पिक्चर देखी थी? 3 इडियट पिक्चर नहीं देखी आपने? 3 इडियट, आमिर खान वाली. बहुत पहले देखी थी, याद नहीं है. हाँ, तो उसमें एक डायलॉग था कि फ्रेंड अगर फेल होता है ना तो दुख होता है, मगर फ्रेंड अगर फर्स्ट आ जाए ना तो ज्यादा दुख होता है. मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा था कि फ्रेंड अगर फेल होता है तो दुख होता है, मगर फ्रेंड अगर फर्स्ट आ जाए ना तो बहुत दुख होता है. खाली दुख नहीं होता, बहुत दुख होता है. तो दिस कैन बी व्हेन यू कैन गेट कंपैरिजन. मगर आपके पास अपने आपके मार्क है ही नहीं और बाजू वाले के 52 मार्क्स है, तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? आपको पता ही नहीं, आप 52 से ज्यादा हो. So when you want to compare, you should have your financial data with you. So your financial data set, it is not only available for you to compare with other business, but you can compare your past performance also. लास्ट 3 साल से हम लोग ये परफॉर्मेंस, ये साल कितना परफॉर्म हुआ, तो उसके लिए यू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन, द डाटा and the statistic which can be given to you about your business only by the financial statement of double entry records. Detailed records are available for reference purposes. If you want to refer where you are making loss, where your expenses are increasing, so that detailed information will be there. And information required by a bank or other lender is readily available. बैंक भी अगर कोई किसी भी बिजनेस में लोन देता है ना, when they issue loan to any business,
दे सी द रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। खाली ऑन द बेस ऑफ द बातों के ऊपर नहीं देते, दे रिक्वायर द प्रूफ, एंड दिस फाइनेंशियल अकाउंट्स आर द प्रूफ्स which shows reliable and accurate data to the lenders, to the shareholders, to customers or the creditors. Creditors भी आपका परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या हाथ का बिजनेस और 4 साल चलेगा तो मैं उसको माल दूं क्रेडिट पे या नहीं दूं, मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, मैं माल तो बेच रहा हूं आपको मगर मेरा पैसा आएगा कि नहीं, वो उसको कैसे पता चलेगा? आज के प्रॉमिस से नहीं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बैंक अगर बिजनेस बैंक गिव्स अ लोन एंड एडवांसेस, then bank tries to have that financial performance and the position statement by which they can assess whether the business is going to run for a longer time or not. Now, this is the introduction that you made, Bindan. Now we will see statement of affairs. And what are the statement of affairs? We will see the definition first, and then we will try to go on the explanation. Statement of affairs is a summary of the financial position of a business on a certain date. समझ लेना, financial position means balance sheet. Balance sheet. So statement of affairs is a summary of balance sheet of a business on a certain date. Because balance sheet be, see, if you write income statement for the financial year hota hai 2019-20, but when you are writing the balance sheet or the financial position as on 31st March 2021, ऐसे आता है. So it is on a date. So statement of affairs is also a summary of your balance sheet or the financial position on a certain date only. It is prepared instead of a statement of finance position when double entry record have not been maintained. जब आप double entry नहीं करते हो, when you are not maintaining double entry bookkeeping, then you are preparing statement of affairs, because उसके बिना आप बता ही नहीं पाओगे. So this is the statement of affairs. If the only records available are those relating to the asset and liabilities of the business, it is not possible to prepare income statement. Asset and liability है, तुम्हारे पास कितनी कार है, कितनी जमीन है, कितना तुम्हारे पास डेटर्स है, कितने तुम्हारे पास क्रेडिटर है, तो कितने तुम्हारे पास कैपिटल है, एंड अदर बैंक लोन कितनी है. These assets and liabilities are listed in a statement of affairs, which is similar to statement of financial position, which are exactly similar to balance sheet. और ये कब प्रिपेयर करोगे? When double entry bookkeeping records are not being maintained. When a list of asset and liability is prepared without the use of set of double entry record, it is known as statement of affairs rather than statement of financial position. So when you are preparing your financial position, but you don't have double entry bookkeeping, then you will prepare because you have not followed double entry bookkeeping, and that's why statement of financial position cannot be made, and that's why you prepared statement of affairs. Now, if the asset, liabilities and capitals of the business are known, बस खाली asset पता है, liability पता है और capital पता है, and no other information is available, the only way in which the profit can be measured is to compare the changes in capital. Because profit क्या होता है? We add it to capital, and loss जो होता है we minus it from capital. So if there are any changes in capital and no double entry bookkeeping is being maintained, then you can what are the changes in capital? That will be the profit. Capital increases when a profit is made and decreases when a loss is incurred. ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये कैपिटल इज मेड व्हेन द प्रॉफिट इज मेड, यहां से लेकर यहां तक. तो उसकी फॉर्मूला, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन प्रॉफिट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट.
and part of the difference between the two capital may be caused by drawing made by the owner. कैपिटल में से तो ड्राइंग भी करता है ओनर, तो उसके लिए क्या करोगे? इफ ड्राइंग हैव बीन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, फॉर्मूला मस्ट बी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, वो तो सेम है, राइट? क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट के फॉर्म, उसमें खाली ड्राइंग आप ऐड कर दोगे। ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल में से निकला है ना, तो आपको वहां ओपनिंग कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल देन ऐड ड्राइंग्स विल गिव यू प्रॉफिट। इन एडिशन कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस, नया कैपिटल अगर डाला भी है उन्होंने, if they have introduced, then what you will do, this will account sum of the difference between the two capital figures. So same formula करो वापस, closing capital plus opening capital plus drawing माइनस कैपिटल, बिकॉज अच्छा जनरली आपको कैपिटल फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करता? कैपिटल फाइंड आउट करना होता। तो क्लोजिंग कैपिटल जो था वो ओपन, जिसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑलरेडी है, ओपनिंग कैपिटल था, उसमें कैपिटल इन जो नया इंट्रोड्यूस किया वो ऑलरेडी अंदर है, होके क्लोजिंग कैपिटल आया है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो आया है उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल भी है, नया जो लास्ट में जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल बचा, तो उसमें थ्रू आउट द ईयर वॉट एवर कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस वो भी अंदर है। तो पहले उन लोग को बाहर निकालो ना, और जो बाहर गया उसको ऐड करो, जो ड्राइंग बाहर गया उसको ऐड करो। तो अगेन द फॉर्मूला विल बी क्लोजिंग कैपिटल minus opening capital plus drawing minus capital introduced will be the profit. An alternative way to calculate the profit is to construct a capital account and insert the missing figure to the profit. जैसे देखो, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? सो इफ यू सी हियर, कैपिटल अकाउंट उसको प्रिपेयर करो, जिसमें क्या क्या करते हो? जो ओपनिंग बैलेंस था आपने कैरी फॉरवर्ड किया, ब्रॉट डाउन किया, ऑन जनवरी 1 को किया। देखो, इफ दिस इज दैट दिस इज द ओपनिंग कैपिटल है, जो कैपिटल इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। अभी नेक्स्ट, जो भी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो भी क्रेडिट होगा, ये और ये क्रेडिट हुआ आपका। उसके बाद जो ड्राइंग किया था पार्टनर्स ने या जो ओनर ने, उसको आप डेबिट करोगे। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है लेस होता है? ऐड होता है, बिकॉज प्रॉफिट इज क्रेडिटेड, तो वो आप ऐड करोगे। वो जो टोटल आएगा उसका दिसंबर 31 को आप करोगे और बैलेंस इस तरह से कैरी फॉरवर्ड करोगे। अभी इसमें से कोई भी फिगर आपको नहीं दिया है, चलो आपको प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया है, आपको ये फिगर दिया है। अभी एक एक फिगर में ड्रॉ करते जाता हूं। दिस इज गिवन टू यू, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू ड्रॉइंग। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस भी दिया है और ओपनिंग भी दिया है। 1 सेकेंड ना बच्चा, होल्ड ऑन बच्चा, एक क्लास से फोन है, होल्ड ऑन करना।
I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. Okay. Okay. What we were talking about. अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि अगर ये आपके पास ये फिगर है, ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारे पास, हाँ, आपके पास कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया वो फिगर है, ये 4 फिगर है, तो ये 5वां फिगर बनेगा, प्रॉफिट का फिगर बनेगा। Yes, sir. ओके, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कौन सा आया, ये क्लोजिंग बैलेंस में ड्रॉइंग ऐड करते हो, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग प्लस माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज मैं बताओ, आप मेरे को बताओ, हम लोग क्या करेंगे अगर प्रॉफिट अभी ऐसे ही, चलो एक छोटे बच्चे को ढूंढना होता तो हम लोग क्या करते, डेबिट साइड का टोटल ले लेते, ये है तेरा 1, ओके, ये फिगर है तेरा 1, ये है तेरा 2, ये है तेरा 3, ये फिगर है तेरा 4, ये फिगर है तेरा 5, ओके, और ये है तेरा 6 और ये तेरा 7 है। तो आप क्या करते, 1 + 2 करोगे तो 6 हो जाएगा। नहीं, 6 - 2 - 1 होगा। एक मिनट, तो 0 हो जाएगा ना। नहीं, 3 होगा ना, 6 - 2 - 1 एंड 6 फिर - 2 नहीं, 1 + 2 इज इक्वल टू 6 एंड 3 + 4 5, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 7, बरोबर है, ठीक है ना। बैलेंस बैलेंस फिगर की बात कर रहा हूं मैं, टोटल टोटल बैलेंसिंग कर रहे हो, जब आप लेजर को बैलेंस कर रहे हो कैपिटल को, तो 1 + 2 करोगे तो 6 मिलेगा आपको, एंड 3 + 4 + 5 करेगा तो 7 मिलेगा, एंड 6 इज इक्वल टू 7। यस, ओके, तो मैं क्या करूंगा, 7 - 3 4 करूंगा तो 7 5 मिल जाएगा। is 5, yes. हाँ, तो 7 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज इक्वल टू 1 + 2, तो 1 + 2 - 3 - 4 इज इक्वल टू 5। Yes. तो ये कौन सा है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। हेलो, Yes, sir. Closing balance. 2 नंबर मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, 1 नंबर ड्रॉइंग है, 3 नंबर मेरा ओपनिंग बैलेंस है, 4 नंबर मेरा कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो वही फॉर्मूला हो गई, क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग, क्लोज 1 + 2 -3 - 4। तो क्लोजिंग बैलेंस, ये देखो फॉर्मूला, क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये जो फॉर्मूला है ना हमारे बुक में, पेज नंबर तेरा कौन सा है, ये पेज नंबर 242 पे, अब देखो फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो 2 - 3 + 1 - 4, ऐसे उन्होंने फॉर्मूला लिखी है। ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो, कैसे भी पकड़ो सेम ही होता है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, 2 इज योर क्लोजिंग बैलेंस, जो नेक्स्ट महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, नेक्स्ट ईयर का। ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, पर ये क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, जो जनवरी 31 मार्च को मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, उसमें से मैं ये करूंगा, ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 को था वो माइनस करूंगा, और एड ड्राइंग करूंगा क्योंकि सेम साइड पे है, डेबिट साइड पे ही है, एंड ये कैपिटल इंट्रोड्यूस जो उसको माइनस करूंगा तो मुझे 5 नंबर मिल जाएगा। एनी डाउट अबाउट दिस, हो तो पूछो बच्चा, डोंट कीप इन योर माइंड। Sir, viable bank beyond credit. वाई, ओके,
You are accountant, and for example, I am the owner of the business and I introduce capital $5,000. आप एंट्री क्या पास करोगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक में से पैसा निकाला या बैंक में पैसा भरोगे आप? बैंक से पैसा निकालेंगे। नहीं, मैं ड्राइंग नहीं किया, मैं आई इंट्रोड्यूस मनी इनटू द बिजनेस। मैंने बिजनेस में पैसे डाल, कैपिटल अकाउंट में आएगा ना। हाँ, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और व्हाट केम इन? डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री ये होगी। The entry will be bank account debit with $5,000 and capital account will be credited, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल बढ़ा ना, तो उसको और क्रेडिट देंगे ना हम। बढ़ गया ना कैपिटल, तो उसको कैपिटल को क्रेडिट देंगे। तो अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, अंदर क्या आया? बैंक। पैसे चेक आया ना, मैंने चेक दिया, मैंने तो कैश भी दिया, जो चेक कैश आपने बैंक में भर दिया। यू आर अकाउंटेंट, याद रखोगे बच्चा, यू आर अकाउंटेंट, तो ही आप अच्छी तरह से ये कर पाओगे। तो आपने वो कैश बैंक में भर दिया, तो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड पे कैपिटल क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड पे बाय बैंक ही लिखोगे ना। यस सर, नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, see, and here they have told bacha clearly the date of 1st January and 31st December have been used for convenience. ये तो convenience के लिए यूज किया है। The first and last day of the financial year of the particular business are used in practice. ये तो आपकी समझ के लिए यहाँ दिया है, हर टाइम January 1st या 31st को नहीं करना है। Okay. Calculating profit by comparing the changes in capital is very unsatisfactory. Only an estimate of the profit for the year is possible. It is not possible to show details about gross profit, sales, purchase, expenses, and so on. And it is not possible to analyze the result of the informed decision about the future cannot be made. Abhi, when you are making, ये आप कब करोगे? When you are doing this? When we don't have the Double entry bookkeeping. So, yes. So ये जो when the double entry bookkeeping हमारे पास नहीं है, and we have capital figure. चेंजेस इन कैपिटल इज बीन प्रीपेड। तो चेंजेस इन कैपिटल में आप क्या करते हो? यहां प्रॉफिट मिला, ये कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ नहीं पता, सेल्स कितना था, परचेज कितना था, एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके कितने हुए, ये सब कुछ पता नहीं चलता। तो दिस इज नॉट अ रिलायबल फिगर। हाँ, रिमेंबर दिस। So you cannot take decision on this. Okay. Explain the meaning of statement of affairs. Statement of affairs is the position of the asset and liabilities of a business when the accounting records are not maintained on the base of double entry bookkeeping principles, and at that time what happens? At that time they prepare statement of affairs to understand the position of the business. Same way, state the circumstances in which statement of affairs is prepared whenever data is not available and the accounting records are not prepared on the base of double entry bookkeeping principles. At that time, in this circumstances, the statement of affairs, that means the asset and liabilities of the business, are being prepared. State why it is not satisfactory to measure profit by changes in capital. Changes in capital. It's just the net profit and not the gross profit. And purchase, sales, expenses, income, any other income or any other expenses that is not been explained. Vijay is a sole trader. Now walk through karte hain bacha. He has not kept a full set of double entry book, but is able to provide you the following information about the asset and liability. Premises, देखो अभी उसने 1st May 2008 and 30th April 2009. तो स्टार्टिंग उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1st May से 30th April, ये उसका
फाइनेंशियल ईयर है, उसका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पोजीशन दिया है और क्लोजिंग पोजीशन दिया है। प्रीमाइसिस एसेट 30,000 था, 30,000 ही है। इक्विपमेंट 9,000 था, 9,000 ही है। मोटर व्हीकल 8,000 था, 8,000 ही है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मीन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक था तेरा 14,000, क्लोजिंग स्टॉक है तेरा 16,000। आर यू गेटिंग मी? ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग में था 8,500, क्लोजिंग में था 9,400। ट्रेड पेएबल 8,000, 9,200, बैंक 1,200 और क्लोजिंग में कुछ नहीं है तुम्हारे पास बैंक में, क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट है। तो ओपनिंग में बैंक तेरा एसेट में था, क्लोजिंग में बैंक तेरा बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए करंट लायबिलिटी। अदर पेएबल्स एंड अदर रिसीवेबल। During the year ended 30 April 2019, Vijay purchased additional equipment for the business costing $7,000. And this is out of personal fund. उसने पर्सनल फंड से बिजनेस के लिए 7,000 का ये किया, इक्विपमेंट लेके आया। तो ये क्या हो गया? इंक्रीज इन, यस, कैपिटल इंक्रीज। वंडरफुल बचा। दिस इज एन एडिशन टू द इक्विपमेंट लिस्टेड। तो इक्विपमेंट भी बढ़ेगा 7,000 से। इक्विपमेंट देखो ऊपर कितना था, ऊपर कितना है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ये 9,000। नहीं बने तो ड्यूरिंग द ईयर है ना, हाँ ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी। सो 7,000 से तेरा इक्विपमेंट बढ़ गया। दिस इज एन एडिशन टू द इक्विपमेंट लिस्टेड। His cash drawing during the year amounted to 5,000. He also took goods costing rupees 3,000 for personal use. ये भी तो drawing ही हो गया ना? So 8,000 drawing. Yeah. On 30th April, that is last, it was decided that all the equipment should be depreciated by 10%. Okay. And the motor vehicle should be depreciated by 25%. It was also decided to create a provision for doubtful debts of the 2% of trade receivable. Prepare statement of affairs on 2008. Statement of affairs on closing 2009. And calculate Vijay profit for the year 30th April 2009. कुछ नहीं, आराम से हम लोग करेंगे। अब देखो, फर्स्ट how much it is? First of all, you will prepare 1st May 2008, that means 30th April 2008 का हो गया वो। हमारा ये साल का ओपनिंग बैलेंस मीन्स लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। yes. ये प्रीमाइसिस इक्विपमेंट सबका जो है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है। दैट मीन्स इसने क्या बोला है, देखो 1st May 2008 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। तो बनाते चलो। पहले हम लोग वी विल टेक ऑल द एसेट्स। ओके, प्रीमाइसिस 30, इक्विपमेंट 9 and 8, दिस आर द 3 एसेट्स सबसे बड़े हमारे, 30, 9 and 8। वो हम लोग लेके जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में 30, 9 and 8। हो गया क्लियर? अभी करंट एसेट, इन्वेंटरी 14, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल 8,500, ट्रेड पेएबल नहीं आएगा, और बैंक 1,200, 14,000, 8,500 and 1,200। ये तेरा हो गया करंट एसेट हो गया। सर अदर रिसीवेबल्स भी आएगा ना? हाँ, अदर रिसीवेबल्स, राइट, यू आर, नीचे वाला देखा ही नहीं मैंने, 120। अभी ये 4, 14,000, 8,500, 1,200 और ये 4 तुम्हारे आ जाएंगे इसमें। इसमें एक चीज याद रखना, उन्होंने कैपिटल तेरे को नहीं दिया है। कैपिटल की फॉर्मूला क्या है बच्चा? कैपिटल की फॉर्मूला, वंडरफुल बच्चा। तो ये तेरा 47,000 तेरा नॉन करंट एसेट हुआ, 23,820 तेरा करंट एसेट हुआ, तो टोटल तेरा ये बन गया 70,820।
अभी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज जो है उसमें टोटल लायबिलिटी जो वो भी तेरा 70,820 होना चाहिए ऑलवेज, और एसेट एंड लायबिलिटी टैली होना चाहिए। अभी लायबिलिटी देखते हैं पहले बच्चा। लायबिलिटी में कौन से तेरा ट्रेड पेएबल 8,000, और कुछ है? ये देखो ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी 8,000, ये कर दिया। सो एसेट कितना था 7820 माइनस लायबिलिटी 8,000, तो 62,820 तेरा ओपनिंग कैपिटल हो गया 1 मई 2008 का कैपिटल हो गया। तो अभी तेरे पास चेंजेस इन कैपिटल भी तू बना पाएगा। ओके, और अपने को प्रॉफिट ढूंढना है। अभी सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट 2009 बच्चा, 39 एंड 8 तेरा सेम है। नाउ 2009 का हम लोग जब बना रहे हैं तो कॉस्ट कितना था 38, और इसमें यू हैव ड्यूरिंग दिस पीरियड यू हैव परचेज 7,000 ऑफ इक्विपमेंट। टोटल कितना था ये 9, 9 प्लस 7 16 हो गया तेरा। डेप्रिसिएशन बाद में करेंगे, पहले कॉस्ट पे लिख लो, बिकॉज ये एडजस्टमेंट आपको करना है। तो 16,000 आपने लिख लिया, दैट्स ऑल। होल्ड ऑन नाउ, नाउ वी विल गो टू करंट एसेट। 39 इन 8 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 16, 9,400 एंड 130। ये क्या हो? और कोई करंट एसेट है आपका? ट्रेड पेएबल्स है, बैंक नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, अदर पेएबल्स करंट लायबिलिटी है। तो 16,000, 9,400 एंड 130। 16,000, 9,400 ये अंदर लिया क्योंकि उसके ऊपर आपको प्रोविजन करना है, एंड 130। I will mark this. So you have made all this. Now we will go to current liabilities. Trade payable 9,200, bank overdraft 900, and other payables 100. तो 9,200 प्लस 9,200, और ये कितना हो गया 100, 9,300, 10,200। दैट इज योर टोटल करंट लायबिलिटीज है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी बच्चा। No, sir. करंट लायबिलिटी में ये साल में आप लेके जाओगे 9,200, 900, 10,200 आप लेके गए। देखो ये वाला 9,000, ये मेरे को हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूं मैं, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है ये। तो 10,200 आपने ट्रांसफर कर दिया। ओके, नाउ वी विल गो टू द एडजस्टमेंट। इट इज एन एडिशनल द कैश ड्रॉइंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 5,000 एंड 3,000 ऑन 30th अप्रैल 2000। ये हम लोग ड्रॉइंग है, तो पहले प्रॉफिट की फॉर्मूला कैसे करेंगे? कैपिटल का अकाउंट बनाओ। कैपिटल ओपनिंग कितना था? लास्ट ओपनिंग था 62,820 ओपनिंग कैपिटल। 62,820। फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस। वो तेरी प्रॉफिट की फॉर्मूला है। ओके, उतना याद रखना, बस उतना करेंगे। अभी 5,000 एंड 3,000 तेरा ड्रॉइंग कैश और गुड्स, ये हो गया। उसके बाद क्या है तेरा? ड्रॉइंग के बाद क्या है? All the equipment should be depreciated by 10, equipment 10%,
मोटर व्हीकल बाय 25% एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2%। ठीक है, ये तीन। तो पहले इक्विपमेंट को 10% से हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे। इक्विपमेंट कहाँ पे? हाँ, इक्विपमेंट 16,000 था, उसका 10% 1,600 हो गया। मोटर व्हीकल को 25% थे, 8,000 का 25% 2,000 हो गया। तो इसमें से ये माइनस करो तो ये मिल गया। 16 में से 1,600 माइनस किया तो 14,400 मिल गया। एंड 8,000 में से 2 माइनस किया तो 6,000। टोटल करो, 54 माइनस 3,600 इज इक्वल टू 50,400 मिल गया तेरे को ये। ओके, उसके बाद आपको क्या करना था? ट्रेड रिसीवेबल जो है उसका क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2% करना है। ट्रेड रिसीवेबल कितना है तुम्हारा? देखो 9,400, उसका 2% करो, 94 का डबल करो 188, माइनस करो, दिस इज करंट एसेट आ गया। 50,000 आपका फिक्स एसेट है, करंट आपका 25 होगा, तो 75,742 आपका टोटल एसेट्स एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ बन गया, लास्ट डे ऑफ द ईयर, सॉरी, 75,742। अभी अगेन यू विल ब्रिंग 75,742 यहां लेके आए टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल में, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो आपका क्लोजिंग कैपिटल मिल गया 65,542। आपका चेहरा देख के मुझे ऐसे लग रहा है बच्चा कि थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा है, because this is not a double entry bookkeeping and that's why you are going to give a single entry. आप जब तक बोलोगे नहीं, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था आई कैन नॉट रीड द फेस, चेहरा देख के मुझे पता नहीं चलता मेरे बेटे को समझ में आया या नहीं आया। Actually, I was thinking. So, 75,742 minus 6,542. नहीं, माइनस 10,200, 65,542 तो आपके पास कैपिटल का फिगर ही नहीं है ना कहीं भी। अभी चेंजेस इन कैपिटल है, चेंजेस 65,542 हुआ। ओपनिंग कितना था तेरे पास? 62,820 था, और क्लोजिंग तेरे पास आया 65,542। दैट इज द क्लोजिंग फिगर दैट यू हैव रिसीव्ड ऑफ 65,542। तेरे पास क्लोजिंग का फिगर लास्ट डे ऑफ द ईयर में तूने जब बनाया तो 65,542 तेरा कैपिटल का फिगर आया। Oh, so we'll get the figure as 10,200, right? 10,200 कौन सा है? Total assets minus capital. टोटल एसेट तो आपको मिल गया 75,742 मिला, उस पे से आप टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज में लिखा, आपके पास 10,200 करंट लायबिलिटीज मिल गया था। इस 75,742 में से 10,200 जब आप माइनस करोगे तो 65,542 मिला आपको। Oh yes, sir. दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल। Hmm. अभी क्लोजिंग कैपिटल फॉर्मूला में लेके जाओ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आपको ये जो भी फिगर मिला 2722 मिला, प्लस ड्रॉइंग जो 5,000 एंड 3,000 था, तो 10,722 हुआ तेरा, ड्रॉइंग ऐड किया तो अभी, और ये देखो 7,000 का जो मैंने बोला था, उसने फ्रॉम द पर्सनल फंड से इक्विपमेंट परचेज किया था, तो आपका कैपिटल उसने उसने जैसे ड्राइंग करता है तो बाहर लेके जाता पैसा, अभी वो 7,000 में खुद के पर्सनल फंड से बिजनेस के लिए 7,000 का इक्विपमेंट से परचेज किया या लेके आया बिजनेस में, तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस ही हुआ ना। तो 7,000 से कैपिटल इंट्रोडक्शन था, वो माइनस करो, उसमें से 7,000 माइनस करो ये, तो आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,722। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस कैपिटल इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपकी फॉर्मूला है।
ऑल्टरनेटिव वे, अगर अगर ऐसे नहीं करना था, फॉर्मूला से आपको नहीं करना था, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो ओपनिंग कितना था, 62,820, क्रेडिट बैलेंस लेके जाओ 62,820। फिर उसने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, 7,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। क्लोजिंग कितना है, 65,542 है ना, 65,542 यहाँ क्लोजिंग मिला है ना अपने को, ये 65,542 ये फिगर, दिस फिगर, तो वो क्लोजिंग बैलेंस था। अभी उसमें 8,000 का ड्राइंग था, तो ड्राइंग ऑलवेज कैपिटल में डेबिट होता है, डेबिट करो, तो तुम्हारा तुम्हारा टोटल है 73,542, इधर भी लिखो 73,542, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट है। अगर मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा होती और डेबिट साइड कम होता तो लॉस आता। यस सर, अभी समझ आया। ओके, the profit is inserted as a missing figure in order to balance the account. If no instruction are provided at the company, the profit calculation can be shown within the closing statement of affairs. In this case, the profit for the year or loss for the year will be intended to make statement of affairs balance. तो अगर मान लो, अगर ऐसे नहीं दिया कोई भी आप लोगों को ये डिटेल नहीं दिया, अगर पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, तो आप जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बनाते हो ना, यहां पे ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो ना, ये दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लास्ट डे का, तो आप क्या करते हैं, यही लेके जाते हैं, ये कैपिटल फिगर भी दिया है, तो डिफरेंस जो भी आता था, करंट लायबिलिटी भी दिया है, कैपिटल फिगर भी दिया है, तो डिफरेंस जो भी आएगा वो तुम्हारा प्रॉफिट फिगर बनेगा। नहीं तो इफ कैपिटल इज नॉट गिवन देन यू हैव टू कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट करने के लिए आपको फॉर्मूला करो या कैपिटल का अकाउंट ड्रॉ करो, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर विल बी योर। अभी देखो सेम, विजय इज अ सोल ट्रेडर, ही हैज नॉट केप्ट अ फुल सेट ऑफ द डबल एंट्री, 7.1 में दिया, assume that the calculation of profit is to be shown within the statement of affairs on 30th April to last day में, the first section of the statement of affairs would be shown in the walkthrough 17.1, the capital section of, इसमें खाली जो बाकी जो ये जो है ये वाला फिगर, everything will be same up to non current assets, up to current assets same रहेगा, करंट लायबिलिटी भी सेम रहेगी, खाली ये कैपिटल वाला फिगर जो है उन्होंने कैसे दिखाया है, देखो ओपनिंग बैलेंस प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो 73,542 हुआ, माइनस ड्राइंग करते हैं तो अपने पास ये फिगर आ गया है, अपने पास ये फिगर है 65,542 इज विथ अस, तो 3,722 विल बी द मिसिंग फिगर विच विल बी इंसर्टिंग एट द प्रॉफिट। कुछ नहीं है बच्चा, जब तक करोगे नहीं ना तब तक नहीं मिलेगा। Okay, Manan is a trader. The following information is provided. Capital on 1st January 2005, $40,000. Capital on 31st December 2006 is $50,000. Profit for the year is 8,000. Capital introduced during the year is 5,000. Calculate by enemy the capital account. Manan's drawing for the year. Okay. नहीं समझ में आएगा, मैं यहीं पे हूं इसमें यस एक, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के डेट पे ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा। सर, सो पहले closing capital will be $50,000
minus opening capital 40,000 capital introduced minus capital introduced 5,000 plus drawings will be profit, which is 8,500. right? You are. So Now what you are supposed to calculate? दिया है, क्वेश्चन में दिया है. drawings. हाँ. So 5,000 plus drawings is 8,500. 3,500 will be the drawings. Right, you are. आया कॉन्फिडेंस? Yes, sir. एक चीज याद रखो बच्चा, अगर बेसिक क्लियर होगा ना, और ये बेसिक में अभी भी मैं बोलता हूं, इसके सम विदिन आप आज या कल में करोगे ना तो ही आपको याद रहेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ गॉड. आप खुदा नहीं हो बच्चा, ना मैं हूं ना आप हो. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इंसान है हम लोग, भूल जाएंगे. अरे ऑनेस्टली बताऊं तो परसों क्या खाना खाया था, अगर मैं पूछूं तो आपको याद करना पड़ेगा. क्या खाया था? घर पे ही था पूरा दिन, फिर भी क्या खाया था याद नहीं आ रहा है. दैन तो पढ़ाई ऐसे नहीं, बिकॉज इफ यू विल कीप ऑन रिपीटिंग ना बच्चा, और जहां भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करो. ऑलवेज रिमेंबर, डिस्कशन विल गिव यू मोर क्लियर पिक्चर. जैसे आप बीच में डाउट आया आपके चेहरे से, इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि कैमरा ऑन रखो, तो मुझे आपके चेहरे से समझ में आएगा कि यू हैव अ डाउट, कुछ प्रॉब्लम है. तो डोंट हेजिटेट टू आस्क उमेश सर. कभी भी मुझे पूछने के लिए कभी मत डरना बच्चा. कहीं भी कोई भी मूड में पूछ सकते हो. नहीं सर एक मिनट नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ कि ये क्या है ये क्या. और एक चीज है, रिपीटेशन करते रहोगे, मीन्स ये इसका रिवीजन करोगे, आज ही करोगे ना, ये चैप्टर आज सोने के पहले करोगे तो डेफिनेटली यू विल नेवर एवर फॉरगेट. ओके, वन सेकेंड ना, होल्ड ऑन. ये लोग क्या क्लासेस वाले एकदम मेरे पीछे पड़ गए. ओके, वी एंड इट ओवर हियर बच्चा. Yes, sir. अपना टाइम हो गया, मेरे को भी नहीं पता चला, इसीलिए उन्होंने पिंग आया उनका. हेलो, उनका पिंग इसके लिए आया कि हम अपना टाइम हो गया, मेरा नेक्स्ट लेक्चर चालू हो गया, इसीलिए पिंग आया उन लोग का. ओके, सो आज जितना किया ना उतना रेफर कर देना, और आगे वाले चैप्टर में से कंट्रोल अकाउंट में से रोज का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो. यू विल बी एबल टू मास्टर इट बच्चा, डोंट वरी. एंड दिस टाइम